दोस्तों आज इम्पोर्टेंट वीडियो है उन ओनर्स के लिए जो कि कमर्शियल व्हीकल्स और प्राइवेट व्हीकल्स चलाते हैं। आप बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं होगा कि आपकी जो 15 साल पुरानी गाड़ी है अब आपको गवर्नमेंट के नॉर्म के हिसाब से स्क्रैप करवानी पड़ेगी। हाँ, जब तक आपकी गाड़ी की फिटनेस है तब तक तो ठीक है, उस गाड़ी को आप रिपासिंग करवा के चला सकते हो। अगर आपकी गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है तो उस गाड़ी को अब आप रास्तों पर चला नहीं सकते हो। वैसे तो ऑल ओवर इंडिया में टाटा मोटर्स के जो रिवायर फैसिलिटी अवेलेबल है 5 से 6 जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन खास अगर पुणे महाराष्ट्र से आप गाड़ी को रिवायर यानी कि आपकी गाड़ी को डिसमेंटल करवाना चाहते हो, 15 साल पुरानी गाड़ी को अगर स्क्रैप करवाना चाहते हो तो टाटा मोटर्स के साथ आप रिवायर के थ्रू गाड़ी को डिसमेंटल करवा सकते हो। क्यों, आपको डिसमेंटल करवाने के बाद का क्या बेनिफिट मिलने वाला है वो आपको एंडिंग में आपको दिखाऊंगा। तो गाड़ी की क्या प्रोसेस होती है, किस तरह से गाड़ी डिसमेंटल की जाती है वही आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मेरे साथ। These old vehicles have higher emission content, lower fuel efficiency, and much lower safety standards. Scrapping these will reduce emissions due to vehicular pollution and overall bring more safety to the Indian roads. A vehicle's fitness is linked to the registration of the vehicle. In case of passenger vehicles, a fitness test is required for re-registration after 15 years. And in case of commercial vehicles, it has to be done every 2 years for the first 8 years thereafter annually. If found unfit at the automated testing station, they would qualify as end-of-life vehicles. In case of government vehicles, all vehicles crossing the age of 15 years will have to be mandatorily dismantled. To tackle these challenges and then some more, we present to you the Tata Motors Rewire Scrappage Facility, which enables you to dispose of your old vehicles without harming the environment and get a fair price. All you have to do is get on the Tata Motors Rewire website, share your vehicle details, and get an instant quote. To get an exact price, one can schedule for a free doorstep evaluation of the vehicle. Once there is an agreement on the price, the vehicle is deregistered as per government policies. We initiate instant payment and the vehicle is picked up to be brought to the Tata Motors Rewire, a state-of-the-art facility where depollutioning and dismantling of vehicles take place in compliance with the government scrappage policy. That means here, all vehicles are recycled in a sustainable manner, irrespective of their age, size, or brand. Once your vehicle is completely dismantled and disposed of, you are given a certificate of deposit that you can use to avail the financial benefits while buying a new vehicle in the future, and also a vehicle scrappage certificate. These benefits may come in many forms, such as discounts or zero registration fees on new vehicle purchase, avail scrap value equivalent of 4 to 6% of the price of the new vehicle, 25% rebate on road tax for passenger vehicles, and 15% for commercial vehicles. Moreover, the reuse of material from recycling will reduce scrap import of our country, while also reducing pressure on our natural resources. Play your part in bringing sustainability and safety to Indian roads. Connect with Tata Motors Rewire and recycle with respect. Ensure that with their coordination, collaboration and alignment, that this plant should be one of the best plant of India. And I am sure by seeing this plant, you all will also realize that this might be one of the best RBSF which we have all over the India. So at Tata Motors, and here we decided to take a very innovative approach, and that too in alignment with the direction set by the central government. I think the central government under the leadership of the Honorable Prime Minister as also Honorable Minister Mr. Nitin Gadkari actually thought about having a decentralized model of scrappage, vehicle scrappage, and do this entire process in a very, very scientific and respectable manner. And this is the process which is now being deployed in our franchise operations. सबसे पहले आपकी गाड़ी जब लाइन पे आते यहाँ पर, यानी कि आपकी गाड़ी को
रिवायर के थ्रू आप जो डिसमेंटल करवाते हो, इस गाड़ी का प्रॉपर वैल्यूएशन निकलता है। यानी कि अगर आपकी गाड़ी आप डिसमेंटल यहाँ पर करवाते हो तो इस गाड़ी का वैल्यूएशन आपको कितना मिलेगा, कितने पैसे मिलेंगे, है ना। सेकेंड पार्ट इसका आता है गाड़ी का डी रजिस्ट्रेशन, यानी कि आरटीओ की तरफ से डी रजिस्ट्रेशन किया जाता है, यानी कि वो गाड़ी आपकी रास्तों पर चलने के लिए रजिस्टर्ड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन आपका सेकेंड पार्ट आता है ये गाड़ी का, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गाड़ी का इंजन ऑयल, गियर ऑयल, एयर कूल का ऑयल निकलता है, ब्रेक ऑयल निकलता है, यानी कि जो हानिकारक जो फ्यूल होते हैं वो यहाँ पर निकाले जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये मशीनरी पूरी लगी हुई है। आज लाइन बंद है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो टोटली गाड़ी का जो फ्यूल होता है यानी कि हानिकारक आपका इंजन ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, ब्रेक ऑयल हो गया, है ना, ये सारे ऑयल को यहाँ पर रिमूव किया जाता है। फिर चाहे वो कार हो या फिर कमर्शियल व्हीकल भी यहाँ पर आप देख सकते हो लगाई गई है। इस तरीके से कुछ मशीनरी है यहाँ पे जो कि लाइन के ऊपर आप गाड़ी देख रहे हो, तो यहाँ से इसका टोटली ऑयल यहाँ पर उसको ऑयल को डिफ्यूज किया जाता है। देन गाड़ी आगे बढ़ती है, आगे की क्या प्रोसेस है हम देखते आइए। गाड़ी दोस्तों डिसमेंटल के लिए आई, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी गाड़ी स्क्रैप है ना। गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे भी पार्ट्स होते हैं जो कि अच्छे होते हैं और उसको रीयूज में आप कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर लाइट देख सकते हो, पीछे की जो टेल लैंप है इसको अगर ये अच्छी कंडीशन में है तो इस पे एक बारकोड लगाने में आया है, यानी कि ये पार्ट आप दूसरी गाड़ी में भी यूज कर सकते हो। समझो किसी और को अगर गाड़ी की पार्ट की जरूरत पड़ी तो बंदा आके यहाँ पर वो पार्ट ले सकता है। जो अच्छे पार्ट है उसको यहाँ पे इस स्टेशन पे रिमूव किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो डोर है, अच्छे कंडीशन में जो डोर है यहाँ पर रखे गए, और यहाँ पर देखिए ये जो डोर निकाल के रखा है, और जो नेक्स्ट डोर है आगे का इसके ऊपर भी एक बारकोड लगा है। बारकोड का मतलब ये है कि ये भी अभी इसको यूज में ले सकते हैं, यानी कि ये पार्ट दूसरे गाड़ी में बैठ सकता है। यहाँ पर आपकी नंबर प्लेट, गाड़ी के टायर्स, लाइट्स, ये सारी चीजें यहाँ पर रिमूव होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अच्छे पार्ट है वो यहाँ पर रखे गए हैं। टायर भी यहाँ से डिसमेंटल होते हैं, यानी कि इस प्रोसेस में टायर भी निकाले जाते हैं, गाड़ी के लाइट्स निकाली जाती है, उन पार्ट्स को यहाँ पर रखा जाता है विद इन बारकोड लगाकर। यहाँ पर आप देख सकते हो इसके ऊपर भी बारकोड लगाया गया है, यानी कि ये जो टायर है ये फिर से आप यूज कर सकते हो, यानी कि दूसरा गाड़ी बैठ सकते हो। इस वाले प्रोसेस में आप देख सकते हो पीछे का रियर बम्पर, आगे का बम्पर, अंदर के सीट कवर्स, ये सारी चीजें यहाँ से रिमूव हो जाती है ना। और हेडलाइट, पीछे की टेल लैंप, पीछे की लाइट यहाँ से रिमूव हो जाती है, यानी कि लाइन नंबर 3 पर। अब यहाँ पर आप जो गाड़ी देख रहे हो इस गाड़ी के अंदर जो पार्ट्स अभी बचे हैं, जैसे इंजन बचा है, सस्पेंशन बचा है, लाइन नंबर 3 पे आपके गाड़ी की जो सस्पेंशन उसको रिमूव किया जाता है, आपका साइलेंसर रिमूव किया जाता है और बहुत सारी चीजें यहाँ से रिमूव करके उन पार्ट को वहां पर रखा जाता है। देन गाड़ी बढ़ती है आगे के प्रोसेस पे, जो लाइन नंबर 4 वो भी देखते हैं। ये नंबर है लाइन नंबर 4, यानी कि चौथे प्रोसेस में आपकी आप देख सकते हो गाड़ी टोटली रिमूव हो चुकी है ना। इंजन भी आपका यहाँ से रिमूव हो चुका है गाड़ी के अंदर से। इसके अंदर आपको बचा है खाली आगे का ग्लास और पीछे का ग्लास, जो छोटे मोटे रबर के जो पार्ट सेट होती है और जो वायरिंग होती है वो भी ये चौथे प्रोसेस में यहाँ से रिमूव की जाती है। देन गाड़ी आपकी फाइनली आगे बढ़ती है प्रेस करने के लिए, जो कि मेटल बॉडी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी टोटल गाड़ी यहाँ से रिमूव हो चुकी है, इंजन रिमूव हो चुका है, अंदर के सीट्स रिमूव हो चुके हैं, यानी कि जो मेन पार्ट से जो मेन रबर कवर्स हो गया और वो सारी चीजों को, टायर, इंजन असेंबली को, टोटल सारी चीजों को यहाँ से रिमूव करने के बाद में इस गाड़ी का खाली मेटल पार्ट बचा है। तो उस मेटल पार्ट को अब यहाँ से आगे प्रोसेस में जाके उसको किस तरह से प्रेस किया जाता है और आपकी इतनी बड़ी गाड़ी इतनी सी बन जाती है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ। तो दोस्तों जैसे कमर्शियल व्हीकल्स हो गई, मैंने आपको दिखाया कि पैसेंजर व्हीकल के 5 स्टेज होते हैं, जैसे कि इंजन रिमूव होता है, पैनल रिमूव होते हैं, और जो मेन पैनल है उसको आप रीयूज कर सकते हो, उसमें बारकोड लगता है। कमर्शियल व्हीकल की क्या प्रोसेस है? तो कमर्शियल व्हीकल की ये जो गाड़ी आप देख रहे हो, कमर्शियल व्हीकल को एक ही जगह पर डिसअसेंबल किया जाता है। हो सकता है फ्यूचर में आगे जाके 2-4 और स्टेशन उसके बन जाए, जैसे कि आप जो कार का स्टेशन देख रहे हो, है ना। एक ही प्रोसेस है। यहाँ पर सबसे पहले गाड़ी का जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं गाड़ी के अंदर ऑयल की सूरत, उसको यहाँ से पूरा ऑयल रिमूव किया जाता है। गाड़ी के अंदर से ऑयल रिमूव होने के बाद में गाड़ी आगे की प्रोसेस में लेके जानी जाती है। आप पीछे स्क्रीन देख रहे हो, वहां पर गाड़ी को पूरी तरीके से डिसअसेंबल किया जाता है।
ये जो देख रहे हो ऑयल डिसअसेंबल होने के बाद में, ऑयल के सारे पदार्थ वहां से निकलने के बाद में यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स को इन क्रेन के माध्यम से उठाकर एक ही जगह पर डिसअसेंबल किया जाता है। बड़ी गाड़ी होने की वजह से एक ही जगह पर उसके टायर रिमूव हो जाएंगे, इंजन रिमूव हो जाएगा और वो बहुत सारी चीजें यहाँ से रिमूव करने में आती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर मेटल का पार्ट अलग अलग सेक्शन बनाए गए, जो भी पार्ट्स के लिए आप देख सकते हो पीछे। ये मेटल का इस पार्ट में मेटल आप रख सकते हो, यानी कि आपकी गाड़ी का रखा जाता है। यहाँ पर आपके एल्यूमिनियम पार्ट जो कि इंजन के पार्ट्स होते हैं वो सारी चीजों को यहाँ पर रखा जाता है। देन यहाँ पर तीसरा पार्ट आता है, यहाँ पर आता है आपका प्लास्टिक पार्ट, जो कि गाड़ी के अंदर बम्पर होता है, गाड़ी के अंदर बहुत सारे प्लास्टिक के पैनल होते हैं, उस पार्ट को इस डिवीजन में रखा जाता है। तो दोस्तों ये डिवीजन बने हैं सारे, जो कि मेटल के पार्ट रखने के लिए, रबर के पार्ट्स रखने के लिए, और आपकी जो गाड़ी के जो पार्ट्स है वो फिर से रिसाइकल होते हैं। हो सकता है आगे जाके वो पार्ट किसी और नए गाड़ी में लग जाए। आप कर लेते हैं फायदे की बात। टाटा मोटर्स रिवाइज फैसिलिटी के साथ अगर आप अपनी गाड़ी को यहाँ पर स्क्रैप करवाते हो तो आपको बेनिफिशियन क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको एक सर्टिफिकेट यहाँ से इशू किया जाता है, उस सर्टिफिकेट को आप दिखाकर आप नई गाड़ी को ले सकते हो। ऑन रोड आपको अच्छा खासा डिस्काउंट देखने के लिए मिलेगा और 0 रजिस्ट्रेशन फी भी आपको लगने वाली है। एक शोरूम प्राइस में 4 से 6% तक आपको कम प्राइस देनी पड़ेगी अगर आप कमर्शियल व्हीकल गाड़ी लेते हो या फिर कार लेते हो। 25 से लेके 15% तक की आपको ऑन रोड टैक्स यानी कि जो पेमेंट है आपका बचने वाला है। तो ये सारे बेनिफिशियल है टाटा मोटर्स के रिवायर फैसिलिटी के साथ अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवाने के। कार हो या फिर कमर्शियल व्हीकल्स हो, टाटा मोटर्स रिवायर फैसिलिटी के अंदर आप अपनी गाड़ी को डिसमेंटल करवा सकते हो, यानी कि स्क्रैप करा सकते हो। आपकी गाड़ी की आपको अच्छी खासी प्राइस पॉइंट भी यहाँ पर मिल जाएगी। दूसरी जगह पर गाड़ी को स्क्रैप करवाने से पहले उनकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कीजिएगा, कि तो आप लोगों की जैसे मैंने बताया गाड़ियों के साथ में अटैचमेंट जुड़ी है, कुछ यादें है, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं स्क्रैप में गाड़ी तोड़ने से अच्छा है कि उस गाड़ी को सही तरीके से रिस्पेक्ट दी जाए। इसलिए टाटा मोटर्स रिवायर का मतलब है रिसाइकल विथ रिस्पेक्ट। आपके गाड़ी को फुल रिस्पेक्ट दी जाती है। तो दोस्तों ये थी प्रोसेस, आपकी गाड़ी को रिसाइकल विथ रिस्पेक्ट के साथ टाटा मोटर्स रिवायर के अंदर आप अपने गाड़ी को डिसअसेंबल करवा सकते हो। ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे टाटा मोटर्स के रिवायर के फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे भुवनेश्वर में है, दिल्ली में है, बहुत जगह पर है। एज अ पुणे महाराष्ट्र में ये चाकन मोशी यहाँ पर खोला गया है। तो अगर आप अपनी गाड़ी को डिसअसेंबल करवाना चाहते हो, अच्छी खासी उसकी प्राइस पॉइंट पाना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी गाड़ी को रिस्पेक्ट मिले, तो टाटा मोटर्स के साथ रिवायर विथ रिस्पेक्ट के साथ अपनी गाड़ी को डिसअसेंबल करवाइएगा। इन्वायरमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। टाटा मोटर्स के साथ अपनी गाड़ी को डिसअसेंबल करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।